Hi everyone, welcome to Concept Cafe. Today we are studying the chapter The Age of Guptas. We will be omitting a few topics which are not there according to the ICSE Council syllabus. So let's begin. Now, in the Mauryan Empire, we had studied that the last Mauryan ruler, who was Brihadrat, was killed by his army general Pushyamitra Sanga in 187 BC. We had studied this. Okay. After that, what happened? Pushyamitra Sanga had a good rule. Okay. After that, in Sanga dynasty, after his death, Sanga dynasty went on for 115 years. Last king of the Sanga dynasty, Devabhuti, he was killed by his minister Vasudeva Kanva. He was killed by Vasudeva Kanva in 72 BC, and the Kanva dynasty lasted for 45 years, and then it was overrun by the Andhra rulers. Now, by this time, several regions of the subcontinent had achieved independence already. Now, Kalinga rose to power in the west, in the east. Kalinga rose to power in the middle of the 1st century under King Kharvela, under whom King Kharvela Kalinga rose to some power. Now, in the northwest, after that, what happened? In the northwest region, the former generals of Alexander had declared their independence. The best known of the Indo-Greek kings was Menander. Best known was Menander, who became a disciple of Buddhist monk Nagasena. His capital was Sakala, that is the Sialkot in Pakistan. His coins have been found as far as Kabul in northwestern Mathura near Delhi. Now, this is a premise of the the Gupta Empire. Now let's come to the Gupta Empire. So the background to the rise of the Gupta Empire you don't have in your syllabus. So we will directly start from the you don't have this part. We will directly start from the sources to reconstruct the age of the Guptas. Now, there are plenty of sources, both literary and archaeological, about the empire of Guptas. So आपको बहुत सारी sources मिल जाएंगी, वो archaeological हो. Literary sources यानी written, जो कि लिखी गई है जो सोर्सेज, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, जो कि बिल्ट है, जो चीज़ें बनाई गई है, जो मकान नहीं बिल्डिंग्स बनाई गई है, बड़े बड़े टावर्स बनाए गए हैं, इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल. और लिटरेरी मतलब कि जो अकाउंट्स लिखे गए हैं, जो भी क्या बताएं हम, पोइटिक काम है, ठीक है, जो भी एपिक्स है, दे आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज. So let's begin with literary sources. The main literary sources may be listed as following. You have a very important literary source, which is the literary account of Fa Hien. Now, Fa Hien kaun the? Fa Hien was a Chinese scholar. This question may come, who was Fa Hien? So Fa Hien was a Chinese scholar who visited India. ठीक है. फाहियन एक ऐसे चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था. किस वक्त? ड्यूरिंग द रेन. जब फाहियन ने विजिट किया था इंडिया को, तो किसका राज चल रहा था? गुप्तास के ऊपर. रेन ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड. चंद्रगुप्ता 2 के रेन में आए गए एक चाइनीज स्कॉलर थे जो कि इंडिया को विजिट कर चुके थे. चंद्रगुप्ता 2 की रेन में वो थे फा हियन. अब पढ़ते हैं. तो फा हियन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था फो को की. इस बुक में क्या लिखा था उन्होंने? इस बुक में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने इंडिया आके क्या क्या देखा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. फा हियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता द 2. ये नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है. He travelled all over India for more than 13 years. उन्होंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया for more than 13 years. And on his return to China वापस जाने के बाद 13 years after travelling all over India, he went back to China and wrote a book called Fo को की, that is the Travels of Fa Hien. ठीक है, इसका मतलब क्या है? The Travels of Fa Hien. His main observations were, तो क्या क्या आपको याद रखना है? He was a Chinese scholar who visited India ड्यूरिंग किसकी रेन में उन्होंने विजिट किया था? ये आपको याद रखना है. ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता 2's रेन. ठीक है. और उसके बाद ही लिव्ड, कितने साल वो रहे थे? ही लिव्ड फॉर 13 years.
13 years and traveled all over India, ये आपको लिखना है. एंड ही रोड द बुक फोको की ट्रैवल्स ऑफ चाइना, जहाँ पे उन्होंने इंडिया के ट्रैवल के बारे में ये लिखा था. तो उस बुक में उन्होंने क्या क्या लिखा है, मेन जो ऑब्जर्वेशंस है देखते हैं. ये है फाहियन. फाहियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनका पिक्चर देख के रखिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कि ये कौन है, कौन सा बुक लिखा है, कितने साल थे, किसके रेन में थे. तो ये फाहियन एक चाइनीज़ स्कॉलर है जो कि इंडिया में आए थे किसके रेन में, चंद्रगुप्ता सेकंड के रेन में. फोको की बुक नाम इन्होंने लिखा है और इसके कुछ मेन ऑब्जर्वेशंस भी आपको बोल सकते हैं कि लिखिए. तो यहाँ पे 4 मेन ऑब्जर्वेशंस थे. क्या क्या? द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा हैड 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज. तो उनके अकॉर्डिंग जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा था उनके पास 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज थी. ओके, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा हैड 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज, वन ऑफ द हिनायन एंड अदर वन ऑफ द महायन. एक हिनायन का था और एक महायन का था. तो फर्स्ट उन्होंने यही देखा कि द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा हैज़ 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज, वन ऑफ द हिनायन एंड अदर ऑफ द महायन. ठीक है, महायन लोगों का, अब ये बुद्धिस्ट सेक्ट्स है. हिनायन महायन ये क्या है, हिनायन महायन, these all are बुद्धिस्ट सेक्ट्स. तो दोनों ही बुद्धिस्ट सेक्ट्स के क्या थे, 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज थे सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा में. He felt amazed to see the grandeur of Ashoka's palace which still existed when Fahian visited Pataliputra. तो जब फाहियन पाटलिपुत्रा गए थे, मौर्य एम्पायर के सबसे अच्छे जो राजा थे अशोका द ग्रेट, he felt amazed to see the grandeur of Ashoka's palace which still existed when he visited Pataliputra. पाटलिपुत्र के शहर में जब वो आए थे उस टाइम पे चंद्रगुप्ता II was reigning, but still Ashoka's palace remained intact and it was very decorated, very grandeur. So he felt amazed कि गुप्ताज के टाइम पे भी मौर्यन अशोका का पैलेस यहाँ पे है. और सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा में 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज थी, वन ऑफ द हिनायन एंड वन ऑफ द महायन. द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कैपिटल सिटी, तो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा गुप्ताज की, और इसकी जो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थी दैट डीपली इम्प्रेस्ड हिम. देयर वाज एन एक्सीलेंट हॉस्पिटल रन बाय द वेल्दी सिटीजन्स ऑफ द टाउन. तो टाउन में बहुत ही एक एक्सीलेंट हॉस्पिटल था लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो कि कौन चलाते थे, वेल्दी सिटीजन्स ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के वेल्दी सिटीजन्स थे वो चलाते थे. तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या हो गया, आपको जो याद रखना है, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा हैड 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज, वन ऑफ द हिनायन एंड वन ऑफ द महायन. Okay, and Fahian was amazed to see the grandeur of Ashoka's palace which still existed when Fahian visited Pataliputra. और क्या, there was an excellent hospital in town which was run by the wealthy citizens. ठीक है, चलिए फिर क्या है, the next point is about secularism and tolerance. सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म ऐसा एक थॉट विचार है जिसमें कोई भी धर्म के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सारे धर्म को इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है. ठीक है, और टॉलरेंस मतलब कि हर धर्म का रिस्पेक्ट ना करना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इन स्पाइट ऑफ योर ओन पर्सनल बिलीव्स और फेथ्स. तो ऑल्दो द किंग वॉज अ डिवाउट वैष्णवा, जो राजा थे वो एक डिवाउट वैष्णवा थे, बट द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, जो बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स थे, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, शैविज्म एंड अदर्स वर कॉर्डियल. तो यहाँ पे एक बहुत ही एक झलक दिखती है हमको कि सेक्युलरिज्म वॉज प्रेवलेंट. ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, सेक्युलरिज्म वॉज प्रेवलेंट इन द गुप्ता एज. क्यों? क्योंकि ऑल्दो द किंग वॉज अ डिवाउट वैष्णवा, द relationship or the relations between the different religious sects, Buddhism, Jainism, Shaivism and others were very cordial. उसके बाद लोगों के बाद में people were honest and law abiding. पीपल वर ऑनेस्ट, यही पॉइंट इसको इलेबोरेट करता कि बहुत लोग बहुत ऑनेस्ट थे, लॉ अबाइडिंग थे, एंड दे वर फ्री फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट. मतलब कि उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता था, वो जहाँ उनका मर्जी जा सकते थे, उनकी मर्जी वहाँ पे वो जा सकते थे. तो पीपल वर ऑनेस्ट और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. द रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट्स वर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे वर ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग. क्योंकि लोग इतने अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, झूठ नहीं बोलते थे, बहुत ही कम वो लोग झूठ बोलते थे और लॉ को मान के चलते थे, मतलब कि लॉ अबाइडिंग थे. तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी राजा को टू पुट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट. सो दे वर फ्री फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट एंड दे कुड गो वेर एवर दे डिज़ायर टू गो. ये एक चीज़ थी. अच्छा, द क्रिमिनल लॉ वॉज माइल्ड, मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ था
वो बहुत ही माइल्ड था। अगर आपने कोई क्राइम किया है, जो लॉ होगा वो बहुत ही कम होता था, जैसे बाल काट देना, ठीक है, वैसे नाक काट, मतलब कि कुछ भी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल करना जो कि आपको डिसरिस्पेक्ट फील करवाएगा। बट मृत्यु दंड जिसे कहते हैं, द पनिशमेंट ऑफ डेथ रिमेन्ड अननोन, मतलब कि द क्रिमिनल लॉ वॉज वेरी माइल्ड एंड द पनिशमेंट ऑफ द डेथ रिमेन्ड अननोन। ठीक है, तो ये 4 नरेटिव फाहियन ने सेट कर दिए थे अबाउट द गुप्ता एम्पायर इन हिज बुक फोको की। फिर से हम इसे एक लाइन में अगर सारे पॉइंट्स को समराइज़ करें तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिटी का ग्रैंड्योर उन्होंने देखा। क्या देखा उन्होंने? हिनायन और महायन का मोनेस्ट्रीज। He saw that the city of Pataliputra had 2 great monasteries, one of the Hinayan and one of the Mahayan. इसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अशोका's पैलेस, जो कि फिर भी एग्जिस्ट करता था। He felt amazed to see the grandeur of the Ashoka's palace which existed in Pataliputra. इसके बाद उन्होंने क्या देखा? An excellent hospital run by the wealthy citizens of the town. An excellent hospital, ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में हमको बताया। उसके बाद क्या? सेक्युलरिज्म के बारे में, कि although the king was devout, किंग बहुत ही कट्टर क्या थे? वैष्णवा थे। वैष्णवा relations between different religious sects such as Buddhism, Shaivism were what? They were very cordial, मतलब कि बहुत अच्छे थे और क्रोध के नहीं थे, बहुत स्वीट थे। अच्छा, लोगों के बारे में, people were honest and law abiding and there were no unnecessary restrictions on their movement. They could go wherever they wanted to go. तो ये आपका थर्ड पॉइंट होता है, people were honest and law abiding, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिमिनल लॉ वाज माइल्ड। क्रिमिनल लॉ काफ़ी माइल्ड था, ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट।